Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Mrs. Sana Fatma, SS Chemistry Divisional Public School and College Saiba. Welcome to online classes. Students, we are on chapter number 10 Alkyl halides and our today's topic is 10.3 beta elimination reactions, some reactions shown by alkyl halide and the question number 8 of exercise. Students, let's see that what we have learned in the previous lessons about this chapter. We have learned that what are alkyl halides, methods of preparation of alkyl halides, reactions of alkyl halides, nucleophilic substitution bimolecular reactions, nucleophilic substitution unimolecular reactions. Students should know that what are SN2 and SN1 reactions. In the SN2 reactions, the nucleophile attacks on the electrophilic carbon of alkyl halide and the halo group attached to the molecule leaves. Both these steps, the attack of nucleophile and the departure of leaving group, takes place at the same time and in the same step. But in SN1 reactions, the process takes place in two steps. The first step is the slow ionization of alkyl halide, and as a result of that, carbocation is formed. And in the second step, nucleophile attack on the carbocation and the substituted product is formed. Let's see that what is our today's learning objective. Today we will learn about beta elimination reactions, E2 mechanism, E1 mechanism, differences between E2 and E1, and reactions of alkyl halides, the preparation of some compounds from ethyl bromide. Let's move towards our today's topic, that is beta elimination reactions. The reactions of alkyl halides in which two atoms or group of atoms are lost from adjacent carbon atoms and form alkenes are called beta elimination reactions. ऐसे रिएक्शंस जिनमें अल्काइल हैलाइड के टू एडजेसेंट कार्बन पर से टू एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एलिमिनेट हो जाएं या रिमूव हो जाएं, ऐसे रिएक्शंस को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं. इसमें आप देख सकते हो कि दिस इज एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, जिसमें ये कार्बन जो कि हेलो ग्रुप के साथ अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन एंड द नेक्स्ट वन इज द बीटा कार्बन. इसमें अल्फा कार्बन फिर से हेलो ग्रुप एंड बीटा कार्बन फिर से एक हाइड्रोजन जो है, दे विल रिमूव एंड अल्कीन विल फॉर्म. ऐसे रिएक्शंस जिनमें दो एडजेसेंट कार्बन पर से दो एटम्स या दो ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. Students, you know that during nucleophilic substitution reactions, the attacking nucleophile attacks the electrophilic carbon atom of the alkyl halide. वे जब nucleophilic substitution reactions होते हैं तो उनमें जो attacking nucleophile है वो alkyl halide के electrophilic carbon पे अटैक करता है. But there is an other side present in the alkyl halide molecule where the nucleophile can attack at the same time. लेकिन अल्काइल हैलाइड पे एक और साइड भी प्रेजेंट होती है जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के अलावा अल्काइल हैलाइड पे एक ऐसी साइड मौजूद है जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. तो सच अ साइड इज एन इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द बीटा कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड. ऐसी साइड क्या है? अल्काइल हैलाइड में बीटा कार्बन के साथ जो बीटा हाइड्रोजन अटैच्ड है, दैट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो उस पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बट इट कैन आल्सो अटैक ऑन द बीटा हाइड्रोजन, दैट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. वो बीटा हाइड्रोजन पर भी अटैक कर सकते हैं. So when the attack takes place on hydrogen, we get an alkene instead of a substitution product. तो अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बीटा हाइड्रोजन पे होता है तो हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की बजाय अल्कीन मिलती है एज अ प्रोडक्ट. तो सच अ टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन. तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की बजाय
बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अल्कीन विल फॉर्म, तो ऐसे रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। These reactions take place simultaneously with substitution reaction and often compete with them. तो ऐसे reactions substitutions के साथ ही हो रहे होते हैं, sometimes उनके साथ compete भी करते हैं। इसमें आप रिएक्शन देख सकते हैं, दिस इज ब्रोमो इथेन, इसमें अल्फा कार्बन के साथ ब्रोमो अटैच्ड है और इसमें बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं दैट आर कंसिडर्ड एज द बीटा हाइड्रोजन। ये जो है दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्यों है, उसकी क्या वजह है कि इनको हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कह रहे हैं, उसकी रीज़न ये ब्रोमो ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अल्फा कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बीटा कार्बन एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस बीटा हाइड्रोजन ऑल्सो। इसमें क्या होगा कि बीटा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि ब्रोमो की तरफ भी ड्रॉ हो जाती है, उसकी वजह से इसके ऊपर भी स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कंसिडर करते हैं। इसमें फिर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द बीटा हाइड्रोजन और इसमें फिर बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से जो ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है दैट विल बी एलिमिनेटेड एंड इथीन विल फॉर्म। इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी अल्कीन। इस केस में जो है इथीन जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है। Now the mechanism of elimination reaction, like substitution reaction, elimination reaction can also follow E2 and E1 mechanism। जिस तरह आपने substitution reactions में देखा था कि substitution reactions दो तरह से हो सकते हैं, SN2 reactions and SN1 reactions के बारे में आपने पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरह elimination reactions भी दो तरह से हो सकते हैं। इनमें हम E2 mechanism और E1 mechanisms के बारे में पढ़ेंगे। E2 mechanism क्या होता है कि इन E2 mechanism the nucleophile attacks and the leaving group leaves at the same time with the formation of carbon-carbon double bond। E2 mechanism में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का जो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक होता है और जो लिविंग ग्रुप वहाँ से लीव करता है, ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो एट अ टाइम हो रहे होते हैं और एक सिंगल स्टेप में हो रहे होते हैं और एज अ रिजल्ट अल्कीन इज फॉर्म। तो ऐसे रिएक्शंस को हम E2 रिएक्शंस कहते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि ये एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है जिसमें न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है और इसको वहाँ से रिमूव करवा लेगा या उसको वहाँ से रिलीज करवा लेगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी शिफ्टेड हियर बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम्स एंड दिस अल्फा कार्बन विल ब्रेक इट्स बॉन्ड विद द ब्रोमो ग्रुप। इसमें क्या होगा कि ब्रोमो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा, यानी कि कार्बन जो कि बीटा कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से जो है वो ब्रोमो ग्रुप जो है, ये दो ग्रुप्स जो हैं एडजेसेंट कार्बन से रिमूव हो जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अल्कीन विल बी फॉर्म। इसमें क्या हो रहा है कि ब्रोमो ग्रुप जो है वहाँ से अल्काइल हैलाइड में से रिमूव हो चुका है और जो न्यूक्लियोफाइल था वो हाइड्रोजन को लेके वहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है दैट इज अल्कीन और ऐसे रिएक्शंस को हम E2 रिएक्शंस कहते हैं। Let's see the characteristics of E2 mechanism. First one is the single step mechanism. Nucleophile attacks and the leaving group leaves at the same time and carbon-carbon double bond is formed. Thus it is a single step mechanism. Students, you have seen in the previous example कि न्यूक्लियोफाइल जो बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप जो अल्फा कार्बन को लीव करके वहाँ से जा रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो एट द सेम टाइम हो रहे हैं और इन द सेम स्टेप हो रहे हैं और एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि अल्कीन इज फॉर्म। तो इसमें फिर क्या होगा कि दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन कि इसमें ये दोनों प्रोसेस जो हैं एक ही स्टेप में होंगे। फिर मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है कि मॉलिक्यूलैरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसको हम उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। So in this mechanism, the reaction takes place in only one step, which is also a rate determining step, and two molecules are taking part in this step. So its molecularity is 2 or it is called a bimolecular mechanism. इस mechanism में आपने देखा है कि एक ही step involved है जिसमें two molecules are participating. One is nucleophile and next one is the अल्काइल हैलाइड। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसलिए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी और ऐसे रिएक्शंस को हम बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहेंगे।
Third one is the rate of reaction. Kinetic studies have shown that the rate of such reactions depend upon the concentration of both alkyl halide as well as the attacking nucleophile. Students, you know that कि रेट जो है वो डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे, उनकी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन बेस करता है। इसमें हमने देखा है कि एक ही स्टेप है एंड दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एंड 2 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, दैट इज nucleophile and the alkyl halide. So rate of reaction will base upon the concentration of both alkyl halide as well as the attacking nucleophile. तो rate of reaction alkyl halide और nucleophile दोनों की concentration पे बेस करेगा। तो इसमें आप इसका रेट एक्सप्रेशन देख सकते हो कि rate of reaction alkyl halide और nucleophile दोनों की concentration पे बेस करेगा। Next one is the reaction kinetics. तो ऐसे रिएक्शंस जो हैं दे शो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। इसमें आप रेट एक्सप्रेशन में देख सकते हो कि अल्काइल हैलाइड की जो पावर है या न्यूक्लियोफाइल की जो पावर है, इनको हम ऐड करें तो हमारे पास 2 आता है। तो इसमें ऐसे जो रिएक्शंस हैं इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है दैट विल बी 2। किस तरह के अल्काइल हैलाइड जो है वो E2 मैकेनिज्म शो करते हैं? तो जनरली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो द E2 मैकेनिज्म। Let's move towards the E1 mechanism. In E1 mechanism, the first step is the slow ionization of the substrate to give a carbocation. First step क्या होता है? इसमें अल्काइल हैलाइड की आयनाइजेशन हो जाती है और एज अ रिजल्ट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द हाइड्रोजन टू गिव एन अल्कीन एज अ प्रोडक्ट। इसमें क्या हो रहा है? ये फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड की आयनाइजेशन हो रही है और एज अ रिजल्ट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड और इसमें ब्रोमो ग्रुप जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे क्या होता है अल्कीन इज फॉर्म। तो इसमें E1 मैकेनिज्म में रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? इज द स्लो आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंड वन में क्या होता है न्यूक्लियोफाइल इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और इसको वहाँ से निकाल लेता है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल शिफ्ट हियर एंड अल्कीन विल बी फॉर्म। इसमें भी क्या होगा कि अल्कीन जो है वो बन जाएगी और इसमें क्या होगा कि ये हाइड्रोक्सिल इस हाइड्रोजन को लेके यहाँ से वाटर की फॉर्म में आपके पास आ गया। इसमें 2 स्टेप्स में प्रोसेस हो रहा है। फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप एंड सेकेंड वन इज द फास्ट स्टेप। So let's see the characteristics of E1 mechanism. It's a 2-step reaction. First step is slow ionization of alkyl halide and carbocation is formed and nucleophile attacks on hydrogen in the second step and alkene is formed. इसमें आपने देखा है कि E1 mechanism में 2 steps involve होते हैं। फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड की आयनाइजेशन होती है और कार्बोकेटाइन बनता है और लिविंग ग्रुप वहाँ से लीव कर जाता है, यानी कि ब्रोमो ग्रुप या कोई भी हेलो ग्रुप जो अटैच्ड होता है अल्काइल के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ, वो वहाँ से लीव कर जाता है। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और बीटा हाइड्रोजन को भी वहाँ से रिमूव करवा लेता है और एज अ रिजल्ट अल्कीन इज फॉर्म। नेक्स्ट इज द मॉलिकुलैरिटी। सिंस फर्स्ट स्टेप इज स्लो एज द ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज इन्वॉल्व्ड एंड इट इज अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एंड ओनली वन मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट इन दिस स्टेप, सो इट इज अ यूनिमॉलिकुलर मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है आयनाइजेशन हो रही है, बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है एंड दैट इज अ स्लो स्टेप एज कम्पेयर टू सेकंड वन, जिसमें क्या हो रहा है कि 2 ऑपोजिटली चार्ज आयन जो है उनका आपस में रिएक्शन हो रहा है, जो कि एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन है, फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, तो ये फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट वन और यही इसमें रेट टर्निंग स्टेप और रेट टर्निंग स्टेप में सिर्फ एक स्पीशी इन्वॉल्व है दैट इज द अल्काइल हैलाइड। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे रिएक्शंस जो हैं इनकी मॉलिकुलैरिटी 1 होती है और इनको हम यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस कह सकते हैं। थर्ड वन इज द रेट ऑफ रिएक्शन एज इट इज अ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन एंड द रेट ऑफ दोज रिएक्शंस व्हिच फॉलो दिस मैकेनिज्म डिपेंड ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें क्योंकि ये एक यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, यानी कि इसका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें सिर्फ एक पार्टिसिपेंट है दैट इज अल्काइल हैलाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे बेस करेगा, यानी कि अगर हम अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज किया जा सकता है। इसमें आप रेट इक्वेशन देख सकते हो कि दैट इज डिपेंड अपॉन द concentration of alkyl halide only and will not upon the concentration of nucleophile. Next one is the reaction kinetics.
These reactions show first order kinetics as the order of reaction is 1. ऐसे reactions के लिए जो order of reaction होता है वो 1 होता है. इसमें आप देख सकते हो कि अल्काइल हैलाइड की पावर 1 है तो order of reaction will be 1. तो किस तरह के अल्काइल हैलाइड जो हैं वो E1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं. तो इसमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूजुअली फॉलो E1 मैकेनिज्म. इसमें जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैं वो E1 और E2 दोनों जो है उनको फॉलो कर सकते हैं. लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन E2 and E1 mechanism. First difference is the E2 stands for bimolecular reaction and E1 stands for unimolecular reaction. Students भी हमने देखा है कि E2 mechanism जो है उसको हम bimolecular mechanism भी कह सकते हैं. तो उसमें क्या होता है कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं. इसमें सिंगल स्टेप है और इसमें क्या है कि अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेंट हैं. तो इस ऐसे रिएक्शंस को हम बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं. और E1 में क्या होता है कि रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट वन एंड दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. और इसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, एक मॉलिक्यूल सिर्फ इन्वॉल्व है. तो ऐसे रिएक्शंस को हम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं. सेकेंड डिफरेंस इज इट इज़ अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म. इसमें क्या होता है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप दोनों एक ही स्टेप में हो रहे होते हैं. तो एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है. लेकिन E1 में क्या होता है कि प्रोसेस 2 स्टेप्स में हो रहा होता है. फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक होता है और अल्कीन इज फॉर्म. थर्ड डिफरेंस इज इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स एंड E1 में क्या है कि इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो इसमें E2 में हमने देखा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 होता है. यानी कि इसमें हमने उसके रेट एक्सप्रेशन से देखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हम अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की जो पावर्स हैं उनको ऐड करके लेते हैं. तो उसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 आता है. लेकिन E1 के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1. फोर्थ डिफरेंस इज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल. And in E1 mechanism, rate of reaction depend only upon the concentration of alkyl halide. इसमें you know that rate of reaction जो है वो डिपेंड करता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन पे बेस करता है. तो ये E2 जो है सिंगल स्टेप है और इसमें 2 पार्टिसिपेंट्स हैं. उसी सिंगल स्टेप में अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल तो दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन बेस करेगा. लेकिन E1 के केस में जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेंट है तो अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन बेस करेगा. किस तरह के अल्काइल हैलाइड जो हैं वो E2 को फॉलो करते हैं. उसमें जनरली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो हैं दे फॉलो द E2 मैकेनिज्म और जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हैं दे यूजुअली फॉलो द E1 मैकेनिज्म. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन E2 एंड E1 मैकेनिज्म. लेट्स मूव टुवर्ड्स सम रिएक्शंस शोन बाय अल्काइल हैलाइड. इसमें फर्स्ट वन इज वर्ड सिंथेसिस. अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन ईथर सॉल्वेंट टू गिव अल्कीन्स. द रिएक्शन इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स. तो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और एज अ रिजल्ट अल्केन इज फॉर्म. ऐसे रिएक्शंस खास तौर पे अगर हमें सिमेट्रिकल अल्केन चाहिए तो सिमेट्रिकल अल्केन की फॉर्मेशन के लिए आप वर्ड सिंथेसिस को यूज़ कर सकते हो. इसमें आप देख सकते हो कि हमने इसमें इथाइल क्लोराइड के 2 मोल्स यूज़ किए हैं एंड दैट विल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम. तो सोडियम क्या करेगा कि अल्काइल हैलाइड में से जो हेलोजन है या क्लोरो है उसको वहाँ से रिमूव करवा लेगा. दोनों में से क्या करेगा कि क्लोरो को वहाँ से निकाल लेगा और यहाँ पे इथाइल ग्रुप विल अटैच विद दिस इथाइल ग्रुप. यानी कि ये सोडियम और क्लोरो यहाँ से NaCl की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे और ये जो इथाइल ग्रुप है दैट विल अटैच विद दिस इथाइल ग्रुप. इसमें फिर हमारे पास जो है वो N-ब्यूटेन आ जाएगा. तो नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड कैन बी रिड्यूस्ड विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड सच एज ACl और एसिटिक एसिड. अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन हो सकती है अगर हम अल्काइल हैलाइड का जिंक के साथ रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड. इसमें आप ACl या एसिटिक एसिड वगैरह यूज़ कर सकते हो. तो जिंक क्या करेगा, जिंक इस क्लोरो को यहाँ से निकाल लेगा और ये जो एसिड का हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ हमारे पास जो है वो प्रोपेन विल बी द प्रोडक्ट. जिंक क्या करेगा, जिंक जो है दैट विल टेक दिस क्लोरो फ्रॉम
प्रोपाइल क्लोराइड, ये प्रोपाइल क्लोराइड इसमें से क्लोरो को निकाल लेगा और उस क्लोरो की जगह पे इस एसिड का हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोपेन विल बी द प्रोडक्ट और जिंक जो है वो जिंक Cl2 की फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यानी कि प्रोपाइल क्लोराइड का क्लोरो यहाँ से निकल जाएगा और उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी कि इसकी रिडक्शन हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट विल बी प्रोपेन और साइड प्रोडक्ट जो है वो जिंक क्लोराइड जो है वो आ जाएगा। थर्ड रिएक्शन इज reaction with sodium lead alloy. Methyl chloride and ethyl chloride react with sodium lead alloy giving tetramethyl lead and tetraethyl lead respectively. इसमें क्या होता है कि जो मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड ये सोडियम लेड एलॉय, सोडियम और लेड का एलॉय है, उसके साथ रिएक्ट करके टेट्रामिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड जो है वो बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मिथाइल क्लोराइड जो है ये सोडियम लेड एलॉय के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें से क्या होगा कि क्लोरो जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे लेड आ जाएगा और वो क्लोरो जो है इस सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देगा, यानी कि इस मिथाइल क्लोराइड में से क्लोरो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे जो है वो लेड आ जाएगा और ये जो सोडियम है इस क्लोरो के साथ बॉन्ड बना देगा और यहाँ पे हमारे पास टेट्रामिथाइल लेड आ जाएगा और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट विल बी सोडियम क्लोराइड। और इस नेक्स्ट एग्जांपल में इथाइल क्लोराइड है, इसका क्लोरो जो है दैट विल बी रिप्लेस बाय लेड और लेड जो है इस इथाइल के साथ मिलके टेट्रा इथाइल लेड बना देगा और ये सोडियम जो है इस क्लोरो के साथ मिलके जो है वो सोडियम क्लोराइड बना देगा। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट विल बी टेट्रा मिथाइल लेड एंड टेट्रा इथाइल लेड। ऐसे रिएक्शंस की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ऐसे रिएक्शंस जो हैं These are used as an anti-knock agents in gasoline. के gasolines में ये anti-knock agents के तौर पे यूज होते हैं। तो these are the some reactions shown by alkyl halides. Next are the question number 8 of exercise. Using ethyl bromide as a starting material, how would you prepare the following compounds? इसमें आपको ethyl bromide starting compound के तौर पे दिया हुआ है, आपने उसको यूज करते हुए different compounds बनाने हैं। Give also inorganic reagents and condition necessary to carry out these reactions. इसमें आपने कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर करने हैं इथाइल ब्रोमाइड से और इसमें आपने जो कंडीशंस या रीजन्स यूज होने हैं वो भी शो करने हैं। इसमें फर्स्ट वन इज द एन-ब्यूटेन। एन-ब्यूटेन को आप वर्ड्स रिएक्शन से सिंथेसाइज कर सकते हो। इसमें आप क्या करोगे, इथाइल क्लोराइड के 2 मोल लोगे और सोडियम के 2 मोल लोगे। सोडियम विल टेक क्लोराइड ग्रुप फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड में से क्लोरो ग्रुप को निकालेगा और दीज इथाइल ग्रुप विल मेक बॉन्ड विद ईच अदर, ये इथाइल ग्रुप आपस में बॉन्ड बना लेंगे और सोडियम जो है इन क्लोरो के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेगा। और इसमें ये रिएक्शन ईथर की मौजूदगी में होता है और इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी एन-ब्यूटेन। इसमें क्या हो रहा है कि इथाइल क्लोराइड के आप 2 मोल ले रहे हो, दैट विल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम क्या करेगा, इन क्लोरो को यहाँ से निकाल लेगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा और पीछे बच जाएंगे 2 इथाइल ग्रुप। तो ये 2 इथाइल ग्रुप आपस में मिलकर एन-ब्यूटेन बना देंगे। नेक्स्ट इज इथाइल अल्कोहल। इसमें आपने इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अल्कोहल बनाना है। इसमें आप इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाओगे विद एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा दैट विल रिप्लेस दिस ब्रोमो ग्रुप और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, यानी इस ब्रोमो को यहाँ से निकाल देगा और खुद जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसकी जगह पे आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट विल बी इथाइल अल्कोहल और यहाँ से जो ब्रोमो रिप्लेस हो रहा है वो पोटेशियम के साथ मिलके पोटेशियम ब्रोमाइड बना देगा। नेक्स्ट इज इथाइल साइनाइड। इसमें आपने इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल साइनाइड बनाना है। इसमें इथाइल ब्रोमाइड का आप रिएक्शन करवाओगे विद पोटेशियम साइनाइड। इसमें इसका जो साइनो ग्रुप होगा दैट विल रिप्लेस ब्रोमो ग्रुप और उसकी जगह पे आ जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा इथाइल साइनाइड। और जो ब्रोमो यहाँ से रिप्लेस हो रहा है वो पोटेशियम के साथ मिलके पोटेशियम ब्रोमाइड बना देगा। नेक्स्ट इज इथेन। इसमें आपने इथाइल ब्रोमाइड से इथेन बनाना है। इसमें आपको रिडक्शन करना पड़ेगी, रिडक्शन होगी जिंक और एसीएल की प्रेजेंस में। जिंक और एसीएल का आपस में रिएक्शन होगा और यहाँ से हाइड्रोजन जनरेट होगा एंड दैट हाइड्रोजन विल रिप्लेस दिस ब्रोमो ग्रुप और यहाँ पे क्या होगा आपके पास इथाइल ब्रोमाइड से जो है वो इथेन आ जाएगा। और नेक्स्ट जो सेकेंड हाइड्रोजन होगा दैट विल रिएक्ट विद दिस ब्रोमो और यहाँ पे आपके पास जो है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड आ जाएगा। नेक्स्ट इज द
इथीन, इसमें आपने इथाइल ब्रोमाइड से इथीन बनाना है। इसमें आप इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाओगे विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो इसमें फिर एलिमिनेशन होती है। इसमें क्या होगा कि एक कार्बन से जो है वो ब्रोमो ग्रुप इलिमिनेट होगा और इसके साथ वाली जो कार्बन है वहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, यानी ओवरऑल यहाँ से HBr की एलिमिनेशन होगी। यानी इस कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होगा और साथ वाला जो कार्बन है इसमें से ब्रोमीन जो है वो रिमूव हो जाएगा। और इन दोनों ग्रुप्स की रिमूवल के बाद क्या होगा, इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स, जब भी आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो एलिमिनेशन होती है, और जब आप एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सब्स्टिट्यूशन होती है। तो इस केस में क्या होगा कि एलिमिनेशन हो जाएगी और एलिमिनेशन के नतीजे में आपके पास जो है वो इथीन आ जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन और जो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहे हैं वापस में मिलके HBr बना देंगे। नेक्स्ट इज द प्रोपानोइक एसिड। इसमें आपने इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपानोइक एसिड बनाना है। ये रिएक्शन जो है इसमें आपको फर्स्टली इथाइल ब्रोमाइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और आपके पास जो है वो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ जाएगा। नेक्स्ट इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो रिएक्शन है ये ईथर की प्रेजेंस में होगा और इसमें जो है H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी प्रोपानोइक एसिड, और इसमें आपके पास साइड प्रोडक्ट जो है वो MgBrOH जो है वो आ जाएगी। इसमें नेक्स्ट जो है आपके पास जो है दैट इज प्रोपेन। इसमें आपने इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपेन बनाना है। फर्स्ट स्टेप में आप इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन होगा विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विल फॉर्म। इन द नेक्स्ट स्टेप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होगा और हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे दैट विल बी प्रोपानोइक एसिड। यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज प्रोपानोइक एसिड, और इस प्रोपानोइक एसिड के साथ जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है दैट इज द साइड प्रोडक्ट। इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये प्रोपानोइक एसिड की आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, और इसमें जो है प्रोपानोइक एसिड विल कन्वर्ट इनटू प्रोपेन और साइड प्रोडक्ट्स विल बी वाटर एंड आयोडीन। इसमें ये रिएक्शन जो है ये 3 स्टेप्स में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जो है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोपानोइक एसिड बनेगा। इन द थर्ड स्टेप जब आप प्रोपानोइक एसिड का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस तो आपके पास जो है प्रोपेन विल बी द प्रोडक्ट। Next, we will recapitulate the lesson. In this lesson, we have read about beta elimination reactions. इन reactions में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स में से 2 adjacent कार्बन में से एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की एलिमिनेशन होती है एंड अल्कीन इज फॉर्म। नेक्स्ट वी हैव रीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं उनके हमने मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा है। इसमें या तो ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे या ये E1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। इसमें हमने E2 और E1 मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ा है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, और इसमें हमने पढ़ा है अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन E2 एंड E1। इसमें हमने E2 और E1 के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है कि E2 इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन और E1 में क्या होता है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। E2 में जो है रेट of the reaction depends upon the concentration of alkyl halide and nucleophile, और E1 में first step is the rate determining step और उसमें सिर्फ alkyl halide is the participant और rate of reaction will depend only upon the concentration of alkyl halide। E2 में क्या होता है कि order of reaction is 2 and E1 में order of reaction is 1 and जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं दे जनरली फॉलो E2 मैकेनिज्म और जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हैं दे जनरली फॉलो E1 मैकेनिज्म। इन we also learned about some reactions of alkyl halide like Wurtz reaction, like reduction of alkyl halide or reaction with sodium lead alloy. And we solved the question number 8 of exercise. Now students, we are going towards the assignment. After this lesson you will be able to solve these questions. First one is what are beta elimination reactions. Second one is what are E2 reactions. What are E1 reactions?
Fourth one is what is Ward's reaction. Fifth one is how would you prepare tetraethyl lead from alkyl halide. Sixth one is how alkyl halides can be reduced. Thank you students.